بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگین ایک سوال یہ کیا کہ وہ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے وہ کہاں جائیں گے, یا ان کا کیا ہے, وہ اس پوری گفتگو میں کہاں فٹ ہوتے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ جو چونکہ یہ سننا قبول نہ کرنا یہ عقائد کے خلاف ہے, یہ بنیادی عقیدے کے خلاف ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آخری نبی ماننا فرض ہے, لازم ہے, عقیدے کی اسینشل ہے, اور جس کو رد کرنے کی بنیاد پر قادیانی اسلام سے باہر ہے, اسی طریقے سے ہر وہ شخص کہ جو حدیث کو ایز اے ہول ریجیکٹ کرتا. یہ الگ فرق ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا اس لیے کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ ایک دوسری بات ہے. حالانکہ وہ حدیث صحیح ہو, اس کو اپنے علم پہ اپنی اندازے کے مطابق, یا کیونکہ اس کی عقل میں نہیں آتی اس بنیاد پر, یا اپنے علم پہ ناز کرتے ہوئے, اور پوری امت میں جو فقہاء کرام اور محدثین نے ایک حدیث کو صحیح کہا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا, تو اس بنیاد پر تو یہ فاسق ہوگا, ڈیوینٹ ہوگا, لیکن کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں حدیث نام کی کوئی چیز یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے کوئی somebody کہ جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, ایسی کوئی شخصیت کہ جس کو ہمیں ان کی وہ اپنی ان کا ایک کام تھا کہ وہ آئے قرآن ہم کو دے کر چلے گئے بس. اگر ان کا یہی کام تھا اور اس کے بعد ان کی اور کوئی وہ نہیں ہے, تو پھر وہ قرآن کی صریح آیات کے خلاف کہتا ہے, اور ایسا شخص کہنے والا کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. تو جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں یا آپ کی جو سنت ہے اس کا وہ دین میں اس پر ایمان لانا کوئی ضروری چیز نہیں ہے, تو ایسا شخص دین کے دائرہ دین سے خارج ہے. اس پہ کبھی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, اس پہ تو قرآن آیت تفصیل سے بے تحاشا موجود ہے, اور تو اس لیے وہ اہل سنت والجماعہ میں بھی نہیں آئے گا, اور اسی طریقے سے وہ ان 73 فرقوں میں بھی نہیں شامل ہوگا, اس لیے کہ وہ اس کا اسلام سے ہی تعلق نہیں. اسلام یا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کی اساسی چیزوں, بنیادی چیزوں کے معلوم من الدین بالضرورہ والی جو چیز ہے ان پر ایمان ہونا ضروری ہے, وہ یقین اس پر ہونا, بات اس کو سمجھ میں آنی چاہیے یہ ساری, اور اس کے دلائل کچھ بھی ہوں تو ظاہر بات اس کو علماء نے ریفیوٹ کیا ہوا ہے, سمجھایا ہوا ہے, اور اگر وہ اپنی کجی کی وجہ سے نہیں سمجھتا تو اس کا اپنا اپنی کج فہمی ہے. ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ میں حدیث سے کچھ فلاں حدیث کو نہیں مانتا, تو ایک الگ بات ہے, لیکن ایز اے ہول میں حدیث ہی ٹائپ کی کوئی چیز کو نہیں رکھتا, اور کوئی سمجھتا نہیں ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایز اے پوسٹ مین خالی ایک حدیث کے قرآن ہمیں دے کے چلے گئے بس, باقی ہم قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے, اور قرآن کو کسی حدیث کی بیساکھی کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے, اور قرآن جو ہے وہ خود انف ہے. تو ایسا شخص ظاہری بات ہے کہ وہ ڈیوینٹ ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کوئی چیز ہوگی تو پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں, پھر ہمیں حدیث کی ضرورت ہوتی تو حدیث میں دیکھ لیتے ہیں, پھر یہ ٹھیک ہے, یہی ترتیب ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن یہ کہ وہ بہانے بناتا ہے اور انداز اس کا یہ ہے کہ حدیث کا رد کرتا ہے ایز اے ہول, تو بہرحال اس کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن کہ وہ اہل سنت والجماعہ ہی سے نہیں, اسلام سے بھی خارج ہے. تو اس کا یہاں ڈسکشن نہیں, جیسا قادیانیوں کا ڈسکشن نہیں, اسی طریقے سے اس شخص کا بھی یہاں ڈسکشن نہیں, یعنی وہ ہمارے موضوع سے باہر. یہ اسی میں آتا ہے نا ناموس رسالت کہ وہ ایک ڈفرینٹ نہیں, وہ الگ چیز ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی, لیکن ظاہری بات ہے توہین کرنے کے نتیجے میں پہلی بات تو یہ کہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے توہین کی, اس کا کس بات کو آپ توہین سمجھ رہے ہیں. اور کوئی شخص جان بوجھ کے اگر توہین کرتا ہے, اعلان کرتا ہے اور اس پر مصر ہے اور بضد ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو اعوذ باللہ نہیں سمجھتا, کچھ نہیں مانتا, تو ظاہر بات ہے وہ بھی اسلام سے باہر ہے. لیکن یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کہتے ہیں بعض اوقات, اس کا معیار ہر انڈیویجول کا کبھی کبھی مختلف ہو جاتا ہے, اس لیے عوام الناس سے اس کا تعلق نہیں. یعنی ایک شخص کہے کہ میں نے کہا محمد اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تو آپ نے توہین رسالت کی, اگر ایسا کہوں میں اور اس بنیاد پر آپ سے لڑوں تو ظاہر بات ہے وہ غلط بات ہوگی, کیونکہ ایک آدمی کے نزدیک یہ معیار ہو سکتا ہے عوام الناس میں. کوئی کہے کہ میں نے اللہ کے رسول کا نام لیا اور آپ جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوئے, یا آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا, اس کو ڈائریکٹ محمد کہہ کے بلاتے ہیں آپ, یہ بے ادبی ہے, اس بنیاد پہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, توہین رسالت نہیں. یہ لوگ عوام الناس جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر کچھ باتیں کہتے اور گھڑتے ہیں, بالکل ظلم اور بالکل غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ علماء کا کام ہے کہ وہ
फैसला करेंगे कि कौन सी चीज़ नामूस रिसालत की तौहीन है और उसकी हतक है, और उसका फैसला फिर वो करेंगे। अवाम उन्नास को उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। उनको कोई बात अगर ऐसी लगती भी हो तो उनको चाहिए कि रुजू करें उलमा से और उनसे कभी फला शख्स ने ये बात कही है और फिर उलमा पे छोड़ दें। उसके बाद जाकर उनसे ये ना पूछे मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूँ, उसके बाद जाकर यहाँ पर काम नहीं है भाई। ये गवर्नमेंट जो है वही डील करेगी अगर उसमें कोई मसाइल है, और अवाम उन्नास को अपने काम से काम रखना चाहिए। असल में उनके ये सारे काम नहीं है कि वो पुलिसिंग करें दुनिया में बैठ के। जी इसलिए भाई एक जो आपने 4 ग्रुप्स बताए लोगों के, उनमें जो बीच वाले 2 ग्रुप्स हैं जी उनमें कभी कभी कुछ लोग मतलब ऐसे मिलते हैं कि जिन्होंने मतलब नॉलेज ना होने की वजह से या फिर किसी ने उन्हें कभी बताया नहीं, ऐसे भी लोग मतलब मैंने खुद देखे हैं कि जिन्हें यही पता नहीं है कि हमें ज़कात देना है, फितरा देना है, तो मतलब और उन्होंने वो इस वजह से वो ये काम नहीं करते। तो इस तरह की मतलब जो दीन के बेसिस हैं वो उन चीज़ों को ही छोड़े बैठे हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या किस तरह से होगा? दीन की बुनियादों को छोड़ के बैठना और उनको नहीं मानना, इनमें फ़र्क है। मतलब एक शख्स ये कहता है कि मैं ज़कात को मानता ही नहीं, मैं नहीं समझता कि ज़कात देना चाहिए, उसी कोई अहमियत नहीं समझता, हालांकि मेरे पास माल है, क्या ज़रूरत है ज़कात दूँ, मेरा टैक्स निकल जाता है, मैं उसी को काफ़ी समझता हूँ और मैं नहीं दूँगा। या मैं ज़कात नहीं दूँगा, मैं तो 10% उससे ज़्यादा ही मैं अल्लाह के नाम में वैसे ही देता रहता हूँ, क्योंकि मैं ज़कात को अहमियत नहीं देता, मेरे नज़दीक वो कुछ भी नहीं। नाउज़ुबिल्लाह। ऐसा शख्स अगर है उसको आप बिठा के समझाएंगे, ये बात काफिराना है, जैसे हम तकफीर के मौजू पर डिस्कशन कर चुके हैं पहले, ये बात तो काफिराना होगी क्योंकि ये उसूलियात दीन में से इसका रद्द करने वाला काफिर हो जाएगा। लेकिन वही बात कि आपको उसको पहले समझाना पड़ेगा। हो सकता है वो एजुकेटेड ना हो सकता है भंग पिया हुआ, हो सकता है किसी की बंदूक के जोर पे ये बात कह रहा प्रेशराइज हुआ हुआ, सही है, या अभी भी मिर्गी का दौरा पड़ा तो उससे उठ के आया तो दिमाग जगह पे नहीं, कोई भी वजह हो सकती है। तो उसका पहले इलाज करा के उसको थोड़ा सा टाइम दे के समझा के जब वो पूरा समझ ले और उसको कहा जाए ऐसा न करने से तुम्हारा ये मामला हशर हो सकता है और ये गलत है और तुम ईमान से बाहर हो जाओगे, फिर वो अगर ऐसा कहता है तो फिर उस पर फतवा लगाया जा सकता है, उससे पहले नहीं। तकफीर का तो वो उसूल हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक शख्स कहता है कि मैं मानता तो हूँ लेकिन यार बस कमज़ोरी है, सुस्ती है, मैं नहीं करता, सही है ना, अल्लाह को हमारी नमाज की क्या ज़रूरत है, बस लोग कह देते हैं। तो ऐसा कहने से मतलब ये जिहालत है और गुनाहगारी की बात है, बहुत बड़ी जुर्रत है, जसारत है जिहालत की बात करना, इतनी बड़ी बात। लेकिन और या मैं कमज़ोरी में क्या बस सुस्ती है, तो गुनाह बहुत बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा दे, इससे कोई काफिर नहीं होता। तो सुस्ती होना और काम न करना जो उसको करना चाहिए वो मुख्तलिफ है इस बात से कि वो उसको मानता नहीं है या उसका मजाक उड़ाता है, कुरान की किसी आयत का, दीन के किसी शार का, उसको शार समझते हुए ये समझता है कि ये दीन का हिस्सा है और अल्लाह ताला ने ये फ़र्ज़ किया है या दीन का हिस्सा है, सुन्नत है, नबी का तरीक़ा है, लेकिन उसका मजाक उड़ाता है ये जानते हुए, अगरचे वो चीज़ दीन का हिस्सा न हो लेकिन ये समझता है कि दीन का हिस्सा है और फिर उसका मजाक उड़ाता है दीनी होने की वजह से, तो तब भी ईमान से खाली है। लेकिन जाहिर बात है ये इसका फैसला फिर वही मैं बात पहले भी कह चुका हूँ कि ये सिर्फ थियोरेटिकल बात है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली इसका आप में से किसी से ताल्लुक नहीं। आपको ये एहतियात करनी है कि मैं इस गलती का शिकार ना हो जाऊँ बस, या किसी को देखूँ तो उसको समझाने के लिए किसी के पास भेज दूँ। अवाम किसी को जज नहीं करेंगे, ये काम सिर्फ उलमा के करने का है कि उसको फिर तहकीक करके तहक़्क़ुक़ करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, फिर उसके बाद फतवे का मसला आता है। और अक्सर तो ये मसला होता ही नहीं क्योंकि लोग जो है जहालत में ये बातें कह जाते हैं। तो अगर कोई आदमी ये कहता है मिसाल के तौर पे कि मुझे पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि आपको लौकी बड़ी पसंद थी और नाउज़ुबिल्लाह वो उसके बाद ये कहे कि इसी वजह से मुझे नापसंद है, अभी आदमी ईमान से खारिज, इसका ये जुमला ईमान के मुनाफी है, सही है ना, क्योंकि वो वैसे कद्दू ना पसंद करता, लौकी पसंद ना करता तो कोई फिक्र की बात ना खाइए, को नहीं पसंद, एक नेचुरल टेस्ट नहीं है। उसको अल्लाह के रसूल की सुन्नत समझते हुए उसको मौक करते हुए उसको बुरा कहना और इस वजह से नापसंद करना, ये ईमान से निकलने वाली बात है। लेकिन जारी बात है उसकी फिर वही तहक़ीक़ होगी, भाई आपको अंदाज़ा क्या कह रहे हैं, वही वाली सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन जो कलमा कुफरिया है, ये अमल कुफरिया है, लेकिन वो शख्स जिसने कहा है क्या वो काफिर है कि नहीं, इसके लिए आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसका पूरा प्रोसेस है जो उलमा कराम का काम है। और अवाम उन्नास का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो किसी के बारे में फैसला करे कि कोई काफिर है कि नहीं,
उनको अपने ईमान की खाली फिक्र और खैर बनानी चाहिए बस। सही में ऐसे इंसान से कता ताल्लुक करना ठीक है? नहीं, इसलिए कि आपने तहकीक नहीं की, तहक़्क़ुक़ हुआ नहीं है। अगर कोई ऐसी बात करता है या कहने लगता है तो आपको ये करना है कि आप उससे फ़ौरन उसको प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें कि किसी आलिम से उसकी मुलाकात हो जाए जो उसको प्यार मोहब्बत से समझा ले, उसको एजुकेट करे। उसके ज़हन में यकीनन कुछ इश्कालात होंगे, किसी बुनियाद पे वो कह रहा होगा, कुछ कन्फ्यूजन होंगी, उस कन्फ्यूजन को दूर करना आपकी ज़िम्मेदारी है एज ए मुसलमान भाई, और उसको समझाइए। अगर वो समझ लेता है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझता और वो दोस्त है आपका, या दोस्त था या कोलीग है और आप समझते कि नहीं वो सुनने के भी तैयार नहीं है और अपने आप को समझता है, उसको बड़ा मालूम है और मुझसे डिस्कस भी नहीं करना चाहता, किसी मौलवी के पास भी नहीं जाना चाहता, तो मैं उससे इस बुनियाद पर क़त्ल ताल्लुक़ करता हूँ। और ताल्लुक़ तो क्या था उससे, बस यही था कि कोलीग है, खूनी रिश्ता है, तो ताल्लुक़ नहीं ख़त्म कर सकते किसी भी बुनियाद पर। कुफ्र की बुनियाद पर भी किसी से ताल्लुक़ नहीं ख़त्म किया जाता, उससे बुनियादी ताल्लुक़ जो रिश्ता है, भाई अगर है खुदा न खास्ता या बाप है, वो इस रास्ते में पड़ गए तो आप उनसे वसाहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, दुनिया में जैसे माँ बाप के बारे में फरमाया कि उनसे शिर्क के बावजूद उनकी बात तो ना मानो, उनके अल्लाह का हुक्म मानना है, लेकिन रहो उनके साथ, मुसाहिबत उनके साथ, ताल्लुक़ उनके साथ अच्छा रखो, यानी उनकी मसाइल, उनकी परेशानियों में, दुख दर्द में उनके साथ शरीक रहो, जैसे जैसे ज़रूरत होती है, नॉर्मल इंसानी ज़रूरियात। तो क़त्ल ताल्लुक़ न करे आदमी अगर खूनी रिश्ता है। और दोस्त अहबाब थे तो दोस्ती ख़त्म करने में कोई मज़ाक़ नहीं, क्योंकि दोस्ती किसी से करना फ़र्ज़ नहीं, कि इससे दोस्ती की तो सारी ज़िंदगी निभाना कोई ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं। अगर आपके कॉमन ग्राउंड से जिस आप अल्लाह के खातिर जुड़े थे, अल्लाह की खातिर आप जुदा होना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि लोगों की तहक़ीर नहीं करनी चाहिए, किसी को अपने से हक़ीर नहीं समझना चाहिए इस बुनियाद पर कि यार इसने कलमा बोल दिया ऐसा, या फ़लाँ शख्स नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि हो सकता है कि वो नमाज तो नहीं पढ़ता यकीनन, और गुनाह का काम है जो नहीं करता, यानी उसको करना चाहिए कि नमाज पढ़े, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह के नज़दीक उसका कोई अमल ऐसा हो कि जो काबिल कबूल हो, या आज तो वो ये गुनाह में पड़ा हुआ है, कल उसको अल्लाह तौफीक दे और वो बहुत आगे निकल जाए, सही है। और उसके बरक्स मैं आज तो नमाज पढ़ रहा हूँ, कल ना पढ़ पाऊँ, कल मैं ईमान से बाहर हो जाऊँ, खुदा न खास्ता, सही है ना, कोई गारंटी तो नहीं, सर्टिफिकेशन तो अल्लाह की तरफ से मुझे नहीं मिली है ना। तो चूँकि इस बात का इम्कान मौजूद है, इसीलिए मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का जो मक़ूला बड़ा अहम फरमाते हैं कि मैं हर इंसान को, हर मुसलमान को अक़ीदतन, अक़ीदे की बुनियाद पर अपने से बेहतर समझता हूँ। अक़ीदा है मेरा ये कि हर इंसान, हर मुसलमान मुझसे बेहतर है, और हर काफिर को इम्कानी तौर पर अपने से बेहतर समझता हूँ, यानी इस बात का इम्कान है कि ये मुझसे बेहतर है। क्यों? अभी तो काफिर है, ईमान लाते ही मुझसे बेहतर हो जाएगा, इस बात की का इम्कान है कि ये मुझसे बेहतर हो जाए ईमान लाते ही, तो इम्कानी तौर पर ये मुझसे बेहतर है, और मुसलमान तो हर हाल में मुझसे बेहतर है। और जब तक आप इस लेवल पे ना आए, रूहानियत का कोई सफ़र तय नहीं होता। अल्लाह ताला के करीब, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पाना आसान नहीं है, उसके लिए मिनिमम काम है। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, और ये चूँकि मौजू बहुत अहम है, इस पर थोड़ा दो वाक़यात अगर मैं बयान कर दूँ तो शायद उससे फ़ायदा हो जाए। वो ये कि जिस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान नहीं लाए थे और ग़ज़वा उहुद में उनके हमले की बुनियाद पर मुसलमानों को बड़ी सख्त पहुँची, 70 सहाबा शहीद हुए, कितनी तकलीफ़ का मकाम हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आपको खौत की लकड़ी जबड़े में लग गई, आपके दांत मुबारक शहीद हुए, खून बहा, आप गिर गए उस गड्ढे में जो दुश्मनों ने आपके लिए खोदा था और ऊपर से कवर किया हुआ था, और आप काफ़ी तकलीफ में, काफ़ी परेशानी में लगे, पत्थर लगा सर पे। कितने सहाबा उनमें हमजा समेत शहीद हुए, मुसअब बिन उमैर समेत शहीद हुए, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन किसकी वजह से? खालिद बिन वलीद की वजह से। लेकिन क्या अल्लाह को नहीं पता था खालिद बिन वलीद कौन है? बज़ाहिर तो ये अमल उनका उस वक्त कितना ख़राब था, हर आदमी कह रहे बहुत बुरा इंसान उस वक्त, लेकिन अल्लाह ताला उनके बारे में जानते थे कि खालिद क्या बनने वाला है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया आपके बारे में? सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। अल्लाह के रसूल का इकराम फरमाते थे, मजलिस में आते तो करीब बुला के बाकायदा उनके सर पे बूसा देते थे। इस्लाम को कितनी इज्जत उनसे मिली, कितनी बरकत उनकी वजह से हुई। लेकिन उस वक्त ये हाल था, अल्लाह जानते हैं, क्योंकि अल्लाह के लिए तो माजी हाल मुस्तक़बिल कोई फ़र्क है? अल्लाह तो फ्यूचर भी उतना ज़्यादा जानते हैं जितना हम अपने एक लम्हा पहले नहीं जानते। अल्लाह के नज़दीक तो खालिद का मकाम पहले से ही था। या उमर फ़ारूक जब
तलवार लेके घर से निकले थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से। बस ज़ाहिर कितना ख़राब काम और कितना ख़राब इंसान। लेकिन क्या अल्लाह को नहीं पता उमर कहाँ जाने वाले, क्या उनका मकाम है। फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होती। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और आग, हवा, पानी और मिट्टी, चारों चीज़ों पर कैसा काबू अल्लाह ने इनको दिया अपनी सल्तनत में, खिलाफत के ज़माने में। आपने नील का वाक़या सुना कि दरिया नील में पानी रुक गया और ऐसा ऐसा कम होने लगा। लोगों ने आके कहा कि हम हर साल यहाँ पर अम्र इब्न अल-आस के पास आए कि हम जो हर साल एक नौजवान लड़की को दुल्हन बना के तैयार करके इसकी भेंट चढ़ाते हैं, तब ये पानी जारी होता है। शैतान ने एक चक्कर चलाया था उनके लिए, उसके बगैर पानी नहीं आता। तो उनका कहना नहीं, ये तो खिलाफ शरअ है, ऐसा कोई अमल नहीं हो सकता, मना कर दिया। लोग ऐसा ऐसा हिजरत करके जाने लगे कि ये तो पानी आहिस्ता आहिस्ता नील का कम हो रहा है और ये भी ख़त्म हो जाएगा 2 महीने बाद, हम तो प्यासे मर जाएंगे। तब ये परेशानी शुरू है। तो हज़रत अमर ने फिर जो है वो ख़त लिखा हज़रत उमर फ़ारूक को रज़ियल्लाहु अन्हु और कहा ये मसला पैदा हो गया, अब क्या करें। हज़रत उमर ने वहाँ से जवाब लिखा और साथ ही रुक्का भेजा। कहा ये रुक्का जो है, ये ख़त जो है छोटा, ये तुम्हारे साथ, ये इसको नील में डाल दो। तो ये पहला ख़त है जो नील के नाम लिखा गया, या किसी भी दरिया के नाम कभी किसी ने लिखा होगा, और शायद आखिरी भी हो। कभी कोई ख़त लिखता है, लेकिन जब अल्लाह ताला इंसान अल्लाह ताला के रास्ते में आ जाए, अल्लाह को अपना महबूब बना ले, तो अल्लाह ताला उसकी बात को ऐसे रखते हैं कि हाथ है अल्लाह का, बंद है मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरीन कार कुशा कार साज बन जाता है कि उसका हाथ बन जाते हैं अल्लाह ताला जिससे वो काम करता है, उसकी ज़बान बन जाती है जिससे वो बात करता है, जिसके पाँव बन जाते हैं, जिसके कान बन जाते हैं जिससे सुनता है। तो लंबी हदीस का एक हिस्सा ये हुआ। ख़त में क्या लिखा था, उमर, अल्लाह के बंदे उमर और अमीरुल मोमिनीन उमर की तरफ से, यानी अल्लाह के बंदे और अमीरुल मोमिनीन उमर की तरफ से नील के नाम, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चलना शुरू कर, वरना यानी वो तुम्हें ये हुक्म दिया जा रहा है, वरना हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारे लिए और असबाब पैदा कर देगा। जो भी उसका इस तरह का मफ़हूम कुछ था। तो उन्होंने पर्चा डाला, आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया और तकरीबन 1400 साल में कब बंद हुआ, कभी बंद नहीं। एक दरिया जो चला चला जा रहा है अल्लाह की रहमत से, पानी पे ये काबू दिया अल्लाह ताला ने उस शख्स को जो आपके नज़दीक उस वक्त अगर आप वहाँ बैठे होते वाक़े में, तो आप यही फतवा लगाते कि हम ऐसे शख्स से मिलना छोड़ दें, क्या वो हकीर और गुनाहगार और बुरा इंसान जो उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दें। लेकिन अल्लाह जानते हैं, तो उनको तो नहीं पता कि फास्ट फॉरवर्ड करके फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये तो आपको अब पता है, उनको नहीं पता था सहाबा को। उन्होंने कोई गुमान नहीं किया, उन्होंने अच्छा गुमान पहले भी रखा, बाद में बल्कि दुआ, अल्लाह के रसूल दुआ फरमाते थे, है ना। एक दफ़ा ज़लज़ला आया तो मदीने में ज़मीन शेक करने लगी, उन्होंने कोड़ा निकाला अपना और ज़ोर से ज़मीन पे मारा और कहा कि क्या तेरी ज़मीन पर अल्लाह का हुक्म नाफिज नहीं किया हुआ, यहाँ पर किसी के साथ कोई जुल्म होता है, जब तेरी ज़मीन पर तुझ पर हम कोई जुल्म नहीं करते और अल्लाह का कानून हमने सारा नाफिज किया हुआ है, कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती, तो फिर क्यों मिल रही, आराम से थम जा, रुक, और रुक गई, खामोश होकर बैठ। ऐसा काबू किसी इंसान का आपने देखा? अल्लाह ताला इस तरीके से बंदे को फिर नवाजते हैं। वो कहते थे कि अगर कोई कुत्ता भी फुरात के किनारे अगर भूख से मरेगा तो उमर जिम्मेदार है उसका। रास्ते में कहीं कील वगैरह और ऐसे लगने से लोगों ने कुएं बनाने के लिए कोई चीज़ गाड़ी और उससे अगर ठोकर खा के गधा भी गिर जाएगा तो उसकी पकड़ मुझसे हो, पगडंडियों पर। रास्ते साफ रखो, ख्याल करो जानवरों का। एक आदमी को इतना ख्याल हो तो अल्लाह ताला उसको ऐसे कुव्वत अता फरमाता है। आग लग गई मदीने में, एक घर जल रहा, दूसरा 3-4 लोग आगे दौड़े दौड़े तुम्हें हमने रोकने की कोशिश की, रुक नहीं थी। ये अपने जिसे पे चादर रखी थी उतार के देते हैं, कहते हैं चादर लेके जाओ और आग के आगे कर दो। आदमी कुछ तो सोच, चादर ले जाके वहाँ उसके आगे की, आग उससे आगे नहीं बढ़ी। इन्होंने चलना शुरू किया, आग पीछे होते 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 तो जब इतनी छोटी हुई उसको कवर करके ढक के उसी में बुझा दिया। मदीने में खड़े हुए बयान कर रहे हैं और बयान के दौरान एकदम से कहते हैं या सारी इलल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ चलो। अपना खुतबा फिर कंटिन्यू किया और जनाब फारिग करके तो कहते अजीब सी बात हुई। महीने भर के बाद जो वहाँ से एक सफारत आती है और आके बताती है, इत्तला क्या रहा, कैसा रहा भाई, वो तुम्हारा भैया तुम लोग को सीरिया में लड़ रहे थे, क्या था सिलसिला। तो कहने लगे भाई वो हम फंस गए थे, दुश्मन के नरगे में आ गए थे बुरी तरीके से चारों तरफ से, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें।
कि हमें आपकी आवाज़ आई, हमने अपनी आपकी आवाज़ सुनी कि पहाड़ की तरफ जाओ। तो उस वक्त जो सारिया, जो हमारे साथ हमारे लीडर थे सारिया, वो सिपहसालार, उन्होंने हमको कहा कि मैंने ये हुक्म है मुझे कि चलो पहाड़ की तरफ, सारे पहाड़ की तरफ चले गए। और नतीजा ये हुआ कि पहाड़ की बैक पे होने की वजह से हमारी एक साइड कवर हो गई, आगे से 3 तरफ फिर हमें लड़ना था, फिर हिम्मत करके अल्लाह का नाम लेके लड़े, फतह। तो जो निगरे में थे उससे बच के यहाँ आ गए। और यहाँ बैठे हुए आवाज़ वहाँ आ रही है, अल्लाह वहाँ का सीन इनको यहाँ दिखा रहा है, हवा के जरिए दिखा रहा है। तो हवा पर काबू, पानी पर काबू, नीर पर, आग पर काबू, ज़मीन पर काबू, मिट्टी, ये 4 ही नासे हैं दुनिया में। तो कायनात पूरी की पूरी वो है आपके कब्जे में। शैतान रास्ता छोड़ देता है जिस रास्ते पे उन्होंने चल के आते हैं। फिक्शन लगता है ना, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरमाया कि जो शख्स मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा तो वो मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। फरमाया हाँ, जिसे कुदसी। फिर फरमाया कि मैं बंदा मेरे करीब आता है फ़राइज़ पूरे करके, और फिर वो मज़ीद आगे बढ़ता है, नवाफिल करना शुरू करता है तो और करीब आता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, जिसके पाँव बन जाता है जिससे वो चलता है, उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, जिसकी बस उसकी समात बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। अब ये बंदा कहाँ जाए, यानी उसकी मदद करने वाले अल्लाह ताला होते हैं। सारी बात अल्लाह ताला नहीं बन जाते, नाउज़ुबिल्लाह। मतलब ये कि अल्लाह ताला आपके हर काम में मदद करना शुरू कर देते हैं। लम्हे लम्हे में आपके ऊपर अल्लाह की तवज्जो और नज़र रहती है। जब हम दुआ करते हैं कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फ़त ऐन, के ए सुनने वाले, ए मदद करने वाले, ए जिंदा व जावेद, तुझ ही से, तेरी रहमत से ही हम जो है वो मदद मांगते, सवाल करते हैं। ला तकिलनी इला नफ्सी, मुझे मेरे हाल पर न छोड़, तर्फ़त ऐन, इतनी देर के लिए भी कि जितनी देर के लिए पलक झुकाई जाती है, इतनी देर के लिए मुझे मेरे हाल पे न छोड़, बल्कि अपने रहमत में ढाँप के रख, अपनी रहमत के अंदर रख। ये उसी वक्त होगा जब आदमी फ़राइज़ पूरे करे, फिर हराम से बचते बचते नवाफिल की तरफ जाए। फिर देखिए हदीस में दूसरी आता है कि अल्लाह ताला आसमान में ऐलान कर देते हैं कि मुझे फ़ला शख्स से मोहब्बत है, तुम भी जिब्रील उससे मोहब्बत करो। जिब्रील कहते हैं भाई अल्लाह ताला को उससे मोहब्बत है, सारे फरिश्तों फ़ला शख्स से मोहब्बत करना शुरू कर दो। ज़मीन में आते तमाम मखलूक़ात फ़ला शख्स से मोहब्बत करना शुरू कर दो, यहाँ तक कि परिंदे, समुंदर में रहने वाली मछलियाँ उस शख्स के लिए दुआएं करती हैं, उससे मोहब्बत करना शुरू कर देती। पूरी कायनात उसके लिए अल्लाह ताला ऐसे मुसख्खर कर देते हैं। और इसकी सहाबा कराम, चारों खुलफा राशिदीन, उनके बाद के अशरा मुबश्शिरा, तमाम ये सब इसकी मिसाल है। इन लोगों की ज़िंदगियाँ ऐसी थी, कोई इत्मीनान। यानी आप सोचें ग़ज़वा उहद में खुद जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद एक लम्हे को कुरान कहता है उन सब पे नींद तारी कर दी अल्लाह ताला। सारे ग़ज़वे में बैठे हो, लड़ाई हो रही है, 70 लोग शहीद भी हो चुके हैं, उसके बाद अचानक सबको नींद आ गई। ऐसी टेंशन में किसी को नींद आती है? क्या अजीब व गरीब सुकून अल्लाह ने नाज़िल फरमाया होगा उन लोगों पर कि सारे लोग बैठे हुए थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, तो दुश्मन बेवकूफ़ बन के चले भी जाए, वरना ख़त्म कर सकते हैं मुसलमानों को। और ये इत्मीनान और सुकून से बैठे हुए अल्लाह ऐसी रहमत नाज़िल फरमाते हैं। तो ये सब इस सूरत में होता है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हम किसी की तहक़ीर नहीं करते, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसका मामला क्या क्या है, उसका अमल आखिर में क्या रहा, किस कैफियत के साथ। एक इशू को हम कह सकते हैं कि ये इशू सही है या इशू गलत है, उसका करने वाला इसमें एहतियात करनी चाहिए, इसको अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर, अल्लाह फैसला फरमाए। ठीक है, कोई और सवाल तो नहीं इस मौजूद पे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर। एक चीज़ कहीं भाई, मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल